Hello dear students. Today we are going to discuss a new chapter of civics, that is urban administration. Dear student, in the previous lectures I told you about the government, and in this concept I told you that there are three levels of the government. These are our national government or center government. Second is our state government, and third is our local government. In the sixth standard, we are discussing about the local government. In previous chapter, we have discussed the rural local government that consists of the Panchayati Raj system, and we discussed the Panchayati Raj system in the detailed manner. In today's concept, we are going to discuss about the urban administration. In this chapter, we are going to discuss about the urban local government. Dear student, as you are aware, our rural local government, it is divided into different categories or three categories. These are our Gram Panchayat, Panchayat Samiti, and Jila Parishad. In the same manner, our urban local government is also divided into the three categories. These are our Nagar Panchayat, municipality, also known as municipal council, and municipal, third is our municipal corporation. Dear student, these three provision or these three categories has been decided in the 74 Amendment Act of the Constitution 1992. They provided the three types of local self-government bodies in the urban area. Dear student, Nagar Panchayat, where the Nagar Panchayat do work. Nagar Panchayat. And Nagar Panchayat is a setup for an area that is in the process of changing from rural to urban सेंटर. यानी कि जो नगर पंचायत होती है वो ऐसे एरिया में बनाई जाती है कि जो गांव आपके रूरल एरिया से अर्बन एरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं, वहां पे आपकी जो है नगर पंचायत बनाई जाती है. एंड द सेम प्रोसीजर वी फॉलोड इन दी ग्राम पंचायत. नेक्स्ट इज अवर म्यूनिसिपैलिटी और म्यूनिसिपल काउंसिल. जो म्यूनिसिपल काउंसिल आपकी होती है, a municipality is also called a municipal council or a municipal committee. It is a local self-governing body for small towns or city. The cities with population between 20,000 and 10 lakhs है municipality. यानी कि ऐसे शहर जहां पे आपकी 10 लाख आपकी जो है 20,000 से लेकर 10 लाख तक पॉपुलेशन होती है, जनसंख्या होती है, वहां पे आपकी म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपैलिटी काम करती है. जो म्यूनिसिपल काउंसिल आपकी होती है, इसका भी इलेक्शन का प्रोसीजर सेम होता है. वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. और इसका जो हेड होता है दैट इज द चेयरपर्सन और चेयरमैन. और एक इसका आपका जो है हेड होता है चेयरपर्सन. और ये आपका जो है जो चेयरपर्सन आपका होता है, ये आपकी जो है एक रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर जो है म्यूनिसिपैलिटी की मीटिंग्स को जो है हेल्ड करता है. इसके अतिरिक्त इसमें आपका एक वाइस चेयरपर्सन भी होता है जो चेयरपर्सन की एब्सेंस में मीटिंग को चलाता है. तीसरी बात आपकी आती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन. Municipal corporation is also a local self-governing body for big cities. The cities with population of more than 10 lakhs have the municipal corporation. यानी कि ऐसे शहर जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा होती है, वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी कार्य करती है.
तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपकी होती है उसमें भी आपके जो है मेयर को चुना जाता है, और ऐसे ही आपका एक जो है डिप्टी मेयर का भी पद इसमें आपका होता है। इसके अतिरिक्त आपके जो है कुछ आपके ऐसे आपके ऑफिसर्स होते हैं जो आपके इलेक्टेड होते हैं, लेकिन जो आपके म्यूनिसिपल काउंसिल के मेयर होते हैं वो आपके जो है इलेक्टेड होते हैं, और ऑफिसर्स आपके जो हैं नॉमिनेटेड होते हैं, यानी कि वो गवर्नमेंट के द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। सो इन दिस चैप्टर मेनली we are going to discuss about the municipal council and municipal corporation. So have a look here. A city is much bigger and more spread out than village. You are well aware about this fact कि जो शहर होते हैं वो गांव से बड़े होते हैं और ज्यादा एरिया में फैले होते हैं। A city has crowded markets, heavy vehicular traffic, electrical facilities and hospital. और दूसरा जो शहर होते हैं उनमें जो है गांव से ज्यादा सुविधाएं होती हैं और गांव से ज्यादा व्यस्त जीवन वो जीते हैं, क्योंकि जब आप शहर में जाते हैं तो शहर की मार्केट आपको जो है भीड़ वाली मिलेंगी, ज्यादा ट्रैफिक आपको वहां पे मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी ज्यादा शहरों में मिलती है और शहरों में आपकी हॉस्पिटल की सुविधाएं भी ज्यादा होती हैं। The administration of a city or urban administration involves planning and making decision to ensure that city runs smoothly. तो इन सारी चीजों के लिए हमको जो है प्लानिंग करनी होती है जिसको हम अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं, ताकि सारे का सारे कार्य जो है स्मूथली चल सके। अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन होता है यानी कि ये जो प्लानिंग का कार्य होता है इसका उत्तरदायित्व एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है इन बिग सिटी और बड़े शहरों में। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। बड़े शहरों में इसको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है। इन स्मॉलर टाउन इट इज कॉल्ड म्यूनिसिपल काउंसिल, और छोटे शहरों में इसको जो है म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आपको बताया था म्यूनिसिपल काउंसिल वहां पे आपकी कार्य करती है जहां पे पॉपुलेशन आपकी 20,000 टू 10 लाख होती है, और जहां पे मोर देन 10 लाख पॉपुलेशन आपकी होती है वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आपका कार्य करती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज हियर, व्हाट आर द वर्क्स ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करती है। द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन takes care of street light, garbage collection, water supply, keeping street and markets clean। यानी कि जैसे ग्राम पंचायत आपके कार्य करती है ऐसे ही सारे कार्य आपकी जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी करती है, बट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डज दीज वर्क्स ऑन ए लार्ज स्केल। लेकिन म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन इन कार्यों को करती है वो एक बड़े स्केल पर करती है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for ensuring that diseases do not break out in the city। और लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कार्य होता है, तो उनको ये भी इंश्योर करना होता है कि शहर में बीमारी न फैले। It also runs schools, hospitals and dispensaries and make gardens and maintains them। इसके अतिरिक्त जो आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और काउंसिल होती है ये आपके स्कूलों को रन करती है, हॉस्पिटल्स बनाती हैं, डिस्पेंसरीज औषधालय यानी कि मेडिसिन की जो दवाइयों की जो दुकान होती है उनको चलाती है, लोगों के लिए गार्डन्स बनवाती है और उनको मेंटेन भी रखती है। सो दीज आर द डिफरेंट वर्क्स ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल। नाउ द वार्ड काउंसिलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। अब जो आपके एडमिनिस्ट्रेशन इतना ज्यादा काम आपका करता है तो ये कैसे आपका कार्य करता है, व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ दैट। एससीटी जैसे कि आपको पता है कि ग्राम पंचायत में आपके इलेक्शंस होते हैं, ऐसे ही शहरों में भी आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी के आपके जो हैं इलेक्शंस होते हैं। तो कैसे होते हैं, सेम मैनर है बेटा आपका। एस सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट वार्ड। आपका जो सिटी है वो अलग अलग वार्ड्स में आपका डिवाइड किया जाता है, एंड ईच वार्ड इलेक्ट अ वार्ड काउंसिलर। और हर एक वार्ड से आपका एक जो है काउंसिलर जो आपका चुना जाता है जिसको म्यूनिसिपल काउंसिलर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि एमसी के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो शहर है वो अलग अलग वार्ड में डिवाइड कर दिया जाता है।
आप अपने वार्ड से एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू दी वोट। When the problems are within a ward, जब भी उस वार्ड में कोई भी समस्या आती है, then the people who live in the ward can contact their counselors। तो आप जो है अपने वार्ड के काउंसलर से कांटेक्ट करते हैं, यानी कि अगर आप जैसे सेक्टर 13-17 में रह रहे हैं तो आपके सेक्टर 13-17 में आपका जो है एक एमसी होता है, वार्ड काउंसलर होता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको सैनिटरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू गिव दीज इशू इन द कॉन्टेक्ट ऑफ द MC or the municipal councillor। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority। For example, अगर आपकी लोकेलिटी में इलेक्ट्रिक वायर हैंगिंग डाउन, आपकी लटक रही हैं, ऐसे ही लटक रही हैं, देन द लोकल काउंसलर, तो आपके वार्ड का जो काउंसलर है, जो एमसी है, वो क्या करेगा, कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। वो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी को इसकी सूचना देगा और उनकी सहायता से उस समस्या का निवारण करेगा। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन, और अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डिसीजन होता है दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय द ग्रुप ऑफ काउंसलर, तो वो ग्रुप ऑफ काउंसलर के द्वारा डिस्कस किए जाते हैं। हु फॉर्म कमेटीज, उसके लिए आपकी कमेटीज बनाई जाती है। टू डिसाइड एंड डिबेट इशू, और उस इशू के ऊपर जो है कोई भी जो है डिबेट जो है वो आपकी की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि पानीपत में आपका जो है एक गर्ल कॉलेज होना चाहिए, तो गर्ल कॉलेज जो है वो पूरे पानीपत को इफेक्ट करता है, तो कहाँ पे इस्टेब्लिश होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, उसके लिए एक कमेटी बनेगी, उसके लिए डिबेट होंगी और तब जाकर वो आपका जो है पास होता है। यानी कि अगर कोई लोकल सा इशू है तो आप सीधा सा म्यूनिसिपल काउंसलर जो है उसको शॉर्ट आउट कर सकता है, लेकिन अगर कोई सेंसिटिव इशू है तो उसके लिए कमेटी आपकी बनाई जाती है। कमेटीज फॉर वोटर, कैसे कैसे कमेटी होती है आपकी, जैसे कि वोटर कमेटी आपकी होती है, गार्बेज कलेक्शन कमेटी, स्ट्रीट लाइटिंग एटसेट्रा, डिसाइड ऑन द वर्क टू बी डन। यानी कि ये सारे कार्य जो है कमेटीज के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं कि कैसे किए जाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव, यदि म्यूनिसिपल कमेटी को लगता है कि आपका जो है बस स्टैंड को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, और अ क्राउडेड मार्केट प्लेस नीड टू हैव इट्स गार्बेज क्लियर, या कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट है जहाँ पे गार्बेज के ढेर लगे रहते हैं, उनको साफ किया जाना चाहिए मोर रेगुलरली, और देयर इज अ नाला और ड्रेन दैट कट थ्रू द सिटी, या आपकी लोकेलिटी में कोई नाला है जहां से गंदा पानी आपका बह रहा है और वो कट गया है, टूट चुका है, तो उसको कैसे मेंटेन करना है, दैट नीड्स क्लीनिंग एटसेट्रा। तो ये सारे के सारे कार्य जो है कोई एक अकेला म्यूनिसिपल काउंसलर नहीं कर सकता, उसके लिए आपकी जो है कमेटीज बनाई जाती हैं। while the committees and councillor decide on issue, the municipal commissioner and the administrative staff implement the same। तो आपके जो हैं कमेटीज और काउंसलर मिलकर जो भी इश्यूज को डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे कार्य किया जाना है, तो म्यूनिसिपल जो कमिश्नर आपका होता है, यानी कि जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो है डीसी जो होता है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो होता है, और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जैसे कि सेक्रेटरी आपके या और कोई आपका जो है आपका स्टाफ है, जैसे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है आपका, हेल्थ ऑफिसर है आपका, सैनिटरी इंस्पेक्टर्स हैं आपके, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स हैं आपके, जूनियर इंजीनियर हैं आपके, तो अलग अलग ऑफिसर्स आपके होते हैं, उन सबके साथ मिलकर जो है ये कार्य आपके किए जाते हैं। द कमिश्नर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है ये आपका अपॉइंटेड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा ये आपके सिलेक्टेड होते हैं। काउंसलर आर इलेक्टेड, जबकि जो आपके एमसी होते हैं, मेयर जो होते हैं आपके, डिप्टी मेयर जो होते हैं, वो आपके इलेक्टेड होते हैं। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क एंड मनी, कि आपका जो है कैसे जो आपका जो है वर्क को जो है म्यूनिसिपल कमेटी जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है और कैसे जो है मनी का सोर्स आपका गेन करती है। The work in the city is divided into different departments of municipal corporation। जो आपके सिटी में जितने भी कार्य होते हैं
वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपके जो है डिवाइड होते हैं। सो देयर इज अ वाटर डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, a department to look after gardens, another to look after roads। तो हर एक के लिए अलग अलग आपके डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे कि सैनिटेशन डिपार्टमेंट ये इंश्योर करता है कि शहर में सफाई हो रही है या नहीं हो रही है। वाटर डिपार्टमेंट आपकी प्रॉपर वाटर सप्लाई को डिसाइड करता है। गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट आपके गार्बेज को कलेक्ट करने का कार्य करता है। ऐसे ही गार्डन्स पार्क को मेंटेन करने का कार्य भी आपका एक डिपार्टमेंट करता है, और रोड की मेंटेनेंस का कार्य भी आपका डिपार्टमेंट्स करता है। यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स आपके म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में बनाए जाते हैं। ऑल दी वार्ड काउंसिलर मीट एंड दे मेक अ बजट। सारे वार्ड काउंसलर जो हैं आपस में मिलते हैं, मीटिंग करते हैं और आपके शहर का बजट तैयार करते हैं। एंड दी मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस बजट, और इस बजट के अनुसार आपके शहर में वो पैसा खर्च किया जाता है। The ward councillor try and ensure that particular demand of their wards are placed before the entire council। तो आपका जो वार्ड काउंसलर होता है ये ट्राई करता है, इस चीज का प्रयत्न करता है, उस चीज को इंश्योर करता है कि उसके वार्ड की जो भी डिमांड है वो जो है कमेटी के सामने, काउंसिल के सामने रखी जाए। दीज डिमांड आर देन इम्प्लीमेंटेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है यानी कि डीसी और जो दूसरे ऑफिसर्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या इनको इम्प्लीमेंटेड किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि वो बाद में आपका जो है डीसी और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का कार्य हो जाता है। नाउ अब आपकी जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है इतने ज्यादा कार्य आपके करती है, तो हाउ इट गेट्स मनी, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता है? इनके पास पैसा कहाँ से आता है बेटा? ए टैक्स। हम जो है लोग जो हैं टैक्स देते हैं। ए टैक्स इज अ सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट्स प्रोवाइड। यानी कि टैक्स जो है एक अमाउंट है आपका, एक पैसा है जो लोग जो है गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं उन सेवाओं के लिए जो सरकार हमको प्रोवाइड करती है। जैसे सरकार हमको हॉस्पिटल बना कर देती है, कॉलेजेस बना के देती है, स्कूल बना के देती है, रोड्स बना के देती है, और बदले में हमसे टैक्स लेती है। तो वो टैक्स का जो पैसा है वो आपकी सुख सुविधाओं के लिए, आपकी अमेनिटीज के लिए यूज किया जाता है। The municipal corporation collect the money required to provide and run the many services for the city in different ways। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन क्या करती है? जो भी रिक्वायर्ड मनी होती है उसको कलेक्ट करती है और उसके बाद अलग अलग सर्विसेज को आपके लोकेलिटी में, आपके शहर में प्रोवाइड करती है। पीपल हु ओन्स होम हैव टू पे अ प्रॉपर्टी टैक्स। अलग अलग तरह के टैक्स आपके जो हैं लिए जाते हैं। तो जैसे कि आप, अगर आपका अपना घर है तो आपसे प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, एज वेल एज टैक्सेस फॉर वाटर। पानी आप जो यूज कर रहे हैं उस पर भी आपका टैक्स लगाया जाता है, और अदर सर्विसेज या और भी कोई सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो उन सभी पे आपको टैक्स पे करना होता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स। जितना बड़ा आपका घर होगा उतना ही ज्यादा टैक्स आपको पे करना होगा। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउएवर फॉर्म ओनली 25 to 30% ऑफ द मनी। हालांकि जो प्रॉपर्टी पर जो टैक्स होता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का केवल 25 to 30% पैसा ही आपका होता है, यानी कि ज्यादा अमाउंट नहीं होता। दैट ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अर्न। यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स से आपकी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन 25 to 30% मनी को कलेक्ट करती है। इसके अतिरिक्त और कहाँ पे टैक्स लगाया जाता है आपका? होटल्स और शॉप ओनर ऑल्सो हैव टू पे अ टैक्स। यानी कि जो होटल ओनर हैं, आपके शॉप ओनर्स हैं, उनको भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को टैक्स पे करना पड़ता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमेनिटीज। इसके अतिरिक्त जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना होता है, और अदर एमेनिटी या दूसरी जो सुख सुविधाएं हैं आपकी उनके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। दूसरी सुख सुविधाएं जैसे कि आप होटल में गए, आपने खाना खाया, तो जो खाना आपने खाया है उस पर भी आपको टैक्स देना होता है। लाइक वी हैव टू पे टैक्स व्हेन वी परचेज अ मूवी टिकट। आप थिएटर में गए, पीवीआर में गए, आपने वहां पे जो है मूवी की टिकट खरीदी, तो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना होता है अलोंग विद द कॉस्ट ऑफ द टिकट, यानी कि टिकट की कॉस्ट के साथ। Thus, while rich people
account for property taxes, a much wider population pays more general taxes. जहाँ पे बड़े बड़े आदमियों को, रिच पीपल को, अमीर व्यक्तियों को प्रॉपर्टी टैक्स देना होता है, वहीं पे जो साधारण लोग हैं उनको अलग अलग प्रकार के टैक्स देने होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, वोटर टैक्स आपको देना होता है, एजुकेशन पर आपको टैक्स देना होता है, शॉप ओनर्स को टैक्स देना होता है, मूवी टिकट आपने खरीदी उस पर आपको टैक्स देना होता है, आप होटल में जो खाते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। कोई भी वस्तु जब आप खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है बेटा MRP इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, तो उनका पोर्शन जो आपका म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को जाता है। नाउ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। अब इतने ज्यादा कार्य आपको करने पड़ते हैं म्यूनिसिपल काउंसलर को, हो सकता है कि वो प्रॉपर रूप से आपके काम ना करे, तो उस समय आप क्या कर सकते हैं? If garbage in the wards lying all over the street remain uncollected, यदि आपको लगता है कि आपके वार्ड में कचरा ऐसे ही पड़ा हुआ है, आपकी स्ट्रीट से वो नहीं उठाया जा रहा, अनकलेक्टेड आपका, इट अट्रैक्ट डॉग्स, रैट्स एंड फ्लाइज, तो वो क्या करेगा बेटा? अगर कूड़े के ढेर आपके घर के सामने लग जाएंगे, गलियों में लग जाएंगे, तो वो डॉग्स, रेट्स और फ्लाई को अट्रैक्ट करेगा। ऑल्सो पीपल गेट इल, और जब ये जानवर आपके ज्यादा आपकी लोकेलिटी में हो जाएंगे तो क्या होंगे? लोग जो है बीमार होना शुरू हो जाते हैं, इवन फ्रॉम द स्मेल, यहाँ तक कि वहां से जो है स्मेल भी आने लगती है। पीपल कैन कॉन्टेक्ट द इलेक्टेड वार्ड काउंसलर, अगर ऐसी स्थिति होती है तो लोग जो हैं अपने वार्ड काउंसलर से मिल सकते हैं ऑफ दैट वार्ड फॉर सच प्रॉब्लम, इस तरह की समस्याओं के लिए, एंड कैन ब्रिंग इट टू द नोटिस टू द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, और इसके अतिरिक्त वो जो है इस सेम समस्या को, इस सेम प्रॉब्लम को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, उनको भी वो इंटीमेट कर सकते हैं, लाइक दी सैनिटेशन इंजीनियर और इवन द कमिश्नर ऑफ द म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, यानी कि वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को भी अप्रोच कर सकते हैं, और वो अगर आपकी बात वहां पे नहीं सुनी जा रही तो आप जो है म्यूनिसिपल कमिश्नर जो आपका होता है, यानी कि जो डीसी होता है, उसको भी आप जो अपनी बात कह सकते हैं। मैनी टाइम देयर आर डिलेज बिफोर अ प्रॉब्लम इज सोल्व, कई बार ऐसा भी होता है कि जो समस्या आपको आ रही है उसको सॉर्ट आउट करने में बहुत देरी हो जाती है, बहुत समय लग जाता है। एंड एक्टिव सिटीजन ऑफ द वार्ड हैव टू गो कलेक्टिवली फॉर ए कम्युनिटी प्रोटेस्ट, अगर आपके कार्य ठीक समय से नहीं हो रहा, उसमें देरी हो रही है, तो आपके समाज से, आपके वार्ड से जो एक्टिव मेंबर हैं वो इकट्ठे मिलकर जो है कम्युनिटी प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि वहां पे जो है शांतिपूर्वक जो है प्रदर्शन कर सकते हैं। इट इज फाउंड दैट रिच और मिडिल क्लास लोकेलिटीज आर क्लीन रेगुलरली, ऐसा भी देखने में आता है कि जो अमीर लोगों की जो लोकेलिटी होती है या मध्यम वर्गीय लोगों की जो लोकेलिटी होती है वो रेगुलरली वहां पे सफाई की जाती है, एंड गिवन मोर फैसिलिटी, और उनको जो है ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती है, लाइक सेटिंग अप पार्क्स एज कंपेयर टू दिस स्लम, यानी कि वहां पे पार्क्स वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह सब चीजों की सुविधाएं दी जाती है, जबकि जो स्लम एरिया है, जो गंदी बस्तियां हैं, वहां पे जो है इस तरह की सुविधाएं नहीं दी जाती। द रीजन, इसके पीछे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कारण बताती है, ऑफन गिवन बाय द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इज दैट द लैंड डज नॉट बिलोंग टू देम, वो ये कह देते हैं कि ये जो लैंड है, यानी कि जो स्लम एरिया है, वो उनसे संबंधित नहीं है, एंड स्लम ड्वेलर्स, ड्वेलर्स का मतलब होता है रेजिडेंस, और जो गंदी बस्तियों में जो लोग रहते हैं, डू नॉट पे टैक्सेस, वो कोई भी टैक्स नहीं देते, तो इसलिए जो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन उनको किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं देती। नाउ गार्बेज कलेक्शन बाय प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर, आज के समय में जो है वैसे तो कार्य म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को करने पड़ते हैं, लेकिन आज के समय में एक नया ट्रेंड आ गया है कि जो आपका गार्बेज कलेक्शन है, यानी कि अलग अलग जो कार्य हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे दिए जाते हैं ताकि कार्य आपका स्मूथ चल सके। हैव ए लुक हियर, इन रिसेंट टाइम्स टू सेव मनी, the commissioner of several municipalities across the country have hired private contractor to collect and process garbage. आज के टाइम में अपना पैसा बचाने के लिए जो कमिश्नर होता है वो क्या करता है, गार्बेज कलेक्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जो है प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को दे देता है।
दिस इज कॉल्ड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी कि काम तो ये आपका सैनिटेशन डिपार्टमेंट ने करना है, लेकिन सैनिटेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को हायर कर लेता है और उनको कॉन्ट्रैक्ट दे देता है, तो उनको जो है वो सारा काम करके जो है सैनिटेशन डिपार्टमेंट को देना होता है। दिस मीन्स that the work that was earlier being done by government worker is now being done by a private company। सब कॉन्ट्रैक्टिंग का मतलब होता है कि जो कार्य पहले गवर्नमेंट वर्कर ने करना था, सरकारी कर्मचारियों को करना था, वो अब प्राइवेट कंपनी के व्यक्ति करेंगे। दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर गेट पेड लेस। जो प्राइवेट कंपनी के जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने वर्कर को कम पैसा देते हैं, कम पैसे में वो काम करा लेते हैं, जबकि सरकार का खर्च उस पर ज्यादा आता है। एंड देयर जॉब आर टेम्परेरी। और प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर होते हैं उनकी जॉब भी जो है वो टेम्परेरी होती है, यानी कि वो फिक्स नहीं होती, परमानेंट नहीं होती है। कलेक्टिंग गार्बेज इज ऑल्सो क्वाइट अ डेंजरस जॉब। दूसरा, गार्बेज को कलेक्ट करना वो जो है आपका एक खतरनाक कार्य है, यानी कि स्वास्थ्य संबंधित बहुत से इशू जो हैं गार्बेज कलेक्टर को फेस करने होते हैं। एंड ऑफन दीज कॉन्ट्रैक्ट वर्कर डू नॉट हैव एनी एक्सेस टू सेफ्टी मेजर। जब हम प्राइवेट को कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं तो गवर्नमेंट की टेंशन खत्म हो जाती है। तो जो प्राइवेट वर्कर जो हैं हो सकता है कई बार उनके पास सेफ्टी मेजर भी नहीं होते, एंड आर नॉट टेकन केयर ऑफ इट इफ दे आर इंजर्ड वाइल वर्किंग। और प्राइवेट कंपनी के जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो अपने कर्मचारियों का इतना ध्यान भी नहीं रखते हैं, अगर वो गार्बेज कलेक्शन के समय जो है इंजर्ड हो जाएं तो उनका कोई ऐसा ध्यान नहीं रखा जाता है, यानी कि वो अपनी वॉइस को रेज नहीं कर सकते हैं। इन सम सिटीज people are advised to sort out and keep the household garbage in two separate dustbin। हालांकि गार्बेज जो कलेक्शन है बहुत ही हजार्डस वर्क है, डेंजरस जॉब है, इसलिए बड़े बड़े शहरों में लोगों को ये एडवाइस दी जाती है कि जो हाउस होल्ड का गार्बेज है, घरों का जो कचरा है, वो जो है दो अलग अलग डस्टबिन में रखें टू रिड्यूस द सॉर्टिंग वर्क ऑफ गार्बेज वर्कर, ताकि गार्बेज वर्कर को उनको जो है सॉर्ट आउट नहीं करना पड़े। यानी कि आपने देखा होगा कि आपकी लोकेलिटी में जो है 2 या 3 तरह के डस्टबिन आपके होते हैं। कुछ में ऐसा होता है आपका कचरा जो बायोडिग्रेडेबल होता है, और कुछ में आपका ऐसा कचरा होता है, ऐसा गार्बेज होता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। तो बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम जो है अलग अलग डस्टबिन में रखते हैं। So these are the different works that has been done by the municipal corporation. So in the municipal corporation, work has been done in this manner. Now we are going to tell example of the Surat city. Surat city, it is situated in the Gujarat region. Have a look here. सूरत वॉज वन ऑफ द डर्टिएस्ट सिटी इन इंडिया। कभी एक ऐसा समय था जब सूरत जो है हमारे देश का सबसे गंदा शहर था। हाउसेस, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स वुड डंप देयर गार्बेज इनटू द नियरेस्ट ड्रेन और स्ट्रीट। जो आपका घरों का, होटल्स का, रेस्टोरेंट का जो भी कचरा होता था वो क्या किया जाता था, ड्रेन्स, नालों के पास, जो नालियां होती थी उनके पास, और स्ट्रीट में आपका ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। विच मेड इट वेरी डिफिकल्ट टू फॉर स्वीपर्स टू कलेक्ट एंड ट्रांसफर द गार्बेज इनटू सिलेक्टेड डम्प्स। जो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था स्वीपर के लिए इस तरह के कचरे को कलेक्ट करना और उनको जो है डस्टबिन में डालना। To make it worse, the municipal council did not collect the garbage regularly। अब जब ये इतना ज्यादा गंदा हो गया तो म्यूनिसिपल काउंसिल ने भी जो है उस कचरे को उठाना छोड़ दिया। इन 1994 several people lost their lives due to the plague। तो जब गार्बेज आपका ज्यादा हो गया तो उसकी वजह से क्या हुआ, सीधी सी बात है बेटा, आपके जो डॉग्स हैं और जो स्ट्रे एनिमल्स हैं, आपकी फ्लाइज हैं, वो वहां पे फैलना शुरू होंगी, स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, बीमारियां जो है ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाएगी। तो 1994 में वहां पे एक महामारी आई, एक बीमारी आई, द नेम इज प्लेग, जिसको प्लेग के नाम से जाना जाता है, जिसमें बहुत सी लोगों की जानें चली गई। विच कैन स्प्रेड थ्रू द एयर। और प्लेग की ऐसी बीमारी है जो आपकी जो है हवा के द्वारा फैलती है।
तो वहां पे कंडीशन जो आपकी मिजरेबल हो गई। सो पीपल हैविंग प्लेग वर आइसोलेटेड, जिन लोगों को प्लेग हुआ था उनको जो है आइसोलेट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एंड ओवर 3 लाख डेजर्टेड द टाउन, और तकरीबन 3 लाख लोग ऐसे थे जो शहर को छोड़कर चले गए। ड्यू टू स्केयर ऑफ द प्लेग, प्लेग के डर के कारण द म्यूनिसिपल काउंसिल कंप्लीटली क्लीन्ड अप द सिटी ऑफ सूरत, जो म्यूनिसिपल सूरत की जो म्यूनिसिपल काउंसिल थी उन्होंने पूरे शहर को पूरे तरीके से साफ करा दिया। टुडे इट इज द सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री आफ्टर चंडीगढ़, और आज चंडीगढ़ के बाद सूरत जो है हमारे देश का सबसे क्लीन सिटी है। यानी कि प्रथम स्थान पर, पहले स्थान पर आपका चंडीगढ़ आता है और दूसरे स्थान पर आपका सूरत का नंबर आता है। सो डियर स्टूडेंट, this is our chapter urban administration. In this chapter we have discussed about the urban administration. In the urban administration we have discussed about the urban local government that consists of the nagar panchayat, municipality or municipal council, and third is our municipal corporation. In this chapter we have discussed how the municipal council and municipal corporation do their work and what are the sources of their income and how to different work carry out in the municipal corporation. So this is enough for today. Thank you. Have a nice day. God bless you all. Beta.